السلام علیکم پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ متحدہ پراپرٹی ڈیلرز کے مرکزی ترجمان مستقیم شاہ کے مطابق مرکزی صدر حاجی شاہپور اسلام کے قیادت میں احتجاج کیا گیا اور اجلاس منعقد ہوا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پراپرٹی میں جو زمتارا کے بالکل ساتھ ہی واقعہ ہے، اس میں متحدہ پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن کے ایک بڑے احتجاجی اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں آصف ایم پی اے صاحب جو پی ٹی آئی کا ایم پی اے ہے، صوبائی ممبر ہے، وہ بھی موجود ہے ہمارے ساتھ۔ اس سے ان لوگوں کے مطالبات کے بارے میں بات کریں گے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، یہ تمام ہمارے حلقے کے معززین ہیں اور روزگار بھی ان کا پراپرٹی سے وابستہ ہے۔ تو آپ کی معلومات کے لیے تھوڑا سا میں بتاؤں، پچھلے سال جب ان کی ٹاؤن شپ پہ ایشوز بنے تھے تو اس پہ یہی پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، مل بیٹھ کے ہم نے کمشنر صاحب سے بھی بات کی تھی۔ جو ان پہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی، کچھ پہ تو ہو گئی تھی، باقی ہم نے ان کو روک دیا تھا، کیونکہ اس میں بڑے ایشو ایسے تھے کہ کوئی بغیر این او سی کی ٹاؤن شپس بنی تھی، اس میں بغیر پلاننگ کی تھی، چونکہ اوپر سے ایجنٹا این سی او سی سی کا یہ فیصلہ تھا کہ جو انلیگل ٹاؤن شپس ہیں ان کو آپ نوٹس دیں، فیڈرل گورنمنٹ کی یہ پالیسی تھی۔ تو انشاءاللہ ابھی تو چونکہ میں ایک آلریڈی کمیٹڈ تھا اور 2-3 پروگرامس اور تھے ہمارے، تو ایف ایم 92 پہ بھی میرا پروگرام لائیو چل رہا تھا، اس میں بھی بزی تھا، پھر ایک اور کمٹمنٹ تھی، بیچ میں ان کی بھی دعوت تھی، اور میں تو سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ میں ذرا لیٹ آ گیا، مجھے ٹائم پہ آنا چاہیے تھا، یہ تمام مطالبات بھی سننے چاہیے تھے۔ تو میں نے ہر بار جب بھی پراپرٹی ایسوسیشن والے آئے ہیں، چاہے شاہپور لال آیا ہے، چاہے ہمارا وائس شاہ بھائی آیا ہے، یہ پچھلے لاسٹ ویک بھی آئے تھے، میں نے ان کو یہی پروپوزل دی تھی کہ آپ جب بھی آئیں ہمارے آفس وتھ پروپوزلز آئیں، یہ ایسی ہوائی باتیں نہیں ہوتی دا بوکو دا بوشی نہیں، ہوم ورک کر کے آئیں، پراپر ہوم ورک کر کے آئیں، جس پہ آپ ہمیں کنونس کریں، انشاءاللہ ہم آگے ان کو اپنے بڑوں کو کنونس کریں۔ باقی رہ گیا ان کا ایف بی آر کا ٹیبل ریٹ ہے، ڈی سی ریٹ ہے، یا خانات کاس کا ایشو ہے، اس میں تو آپ کو پتہ ہے یہ تو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، جنہوں نے جو فیصلہ دیا تھا ایبٹ آباد ہائی کورٹ بینچ نے، چونکہ اس در ایک ایسا مس ہے۔ آج میٹنگ متحدہ پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن کے زیر اہتمام تھی، وہ اس لیے کہ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا کہ بھئی جتنا خانہ کاش کا مسئلہ ہے، گین ٹیکس کا مسئلہ ہے، 1 منزل 2 منزل 3 منزل کا فیصلہ ہے، یہ کرنا چاہیے، اور حکومت کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ سارا پراپرٹی ڈیلر انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، اور اگر حکومت، ہم کوشش کریں گے کہ صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، اگر حکومت نے ہمارا مذاکرات، ہمارا پروگرام سے منہ موڑا تو ہم مجبور ہے کہ ہم احتجاج پہ مجبور ہو جائیں گے اور احتجاج کریں گے۔ دائرہ دین پناہ سے ملک کفایت اللہ کی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری اسکول ایجوکیشن جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام انور، سی ای او ایجوکیشن مسعود احمد ندیم، ڈی ای او سیکرٹری اکبر بخاری کے احکامات کے مطابق گورنمنٹ ہائی اسکول حبیب والا چک نمبر 145 ML میں اسٹوڈنٹ کونسل کے حوالے سے صدر، نائب صدر اور جنرل سیکرٹری کی نشستوں پر غیر سیاسی، غیر جانبدار، صاف شفاف الیکشن کا انعقاد کیا گیا۔ الیکشن کے نتیجے میں کلاس 10 کے نعمت اللہ صدر اور کلاس 9 کے محمد عرفان نائب صدر، کلاس 8 کے عمران ارشد نے جنرل سیکرٹری کی نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ اس موقع پر ادارے کے ہیڈ ماسٹر خالد محمود، چیف آرگنائزر احسن اقبال، الیکشن کمیشن ناصر عباس، ریٹرننگ آفیسرز غلام مرسلین اور سجاد حسین، الیکشن ٹربیونل محمد شریف، پریزیڈنٹنگ آفیسر محمد ندیم اور جملہ پولنگ سٹاف میں وقاص شاہ، محمد زبیر، محمد رضوان، ریاض حسین، الطاف حسین، محمد نعیم اور سید سجاد حسین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس موقع پر ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ شاندار الیکشن کروانے پر ہیڈ ماسٹر نے پورے سٹاف کو مبارکباد دی۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ ہاکی وومن سپورٹس لیگ HEC کے زیر سایہ صوبہ پنجاب میں جاری گوشرا کے انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں بچوں کے ٹرائل اختتام پذیر ہو گئے۔ معروف لیڈی ڈاکٹر سیمی وسیم چیمہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 5 ضلع گوشرا انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم، گکھر گوجرانوالا انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم، میری پیٹرولیم ہاکی اسٹیڈیم، راولپنڈی بھاولپور ہاکی اسٹیڈیم اور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں 15 سال سے 25 سال تک کی عمر کے نوجوانوں کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا۔ مس شاہ
अब्बास ख्वाजा स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और हायर एजुकेशन कमीशन ने खेलों की अहमियत को फरोग देते हुए इस प्रोग्राम की शुरुआत की, जो हमारी नौजवान नस्ल के दरमियान मुस्बत सरगर्मियों को फरोग देने के लिए एक खुशाइन सिलसिला है। HEC प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हिंट हॉकी वुमेन स्पोर्ट्स लीग की जिम्मेदारी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिसेस उमेरा सतार को सौंप दी गई, ताकि हॉकी का खोया हुआ मुकाम वापस दिलवाया जा सके। आज गोशरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में हॉकी के ट्रायल्स के दूसरे रोज गोशरा, समुंदरी और फैसलाबाद से कसीर तादाद में खिलाड़ियों ने शिरकत की। सिलेक्शन कमेटी में शामिल मेंबरान ने उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले पहले 25 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम को तश्कील दिया। वुमेन हॉकी टीम की तश्कील के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मजीद 18 खिलाड़ियों को अलहदा किया जाएगा। इस फहमीदा बतौर मैनेजर हॉकी वुमेन टीम के फराइज सर अंजाम देंगे। असिस्टेंट मैनेजर की जिम्मेदारी मिस्टर शाहिद तनवीर को सौंपी गई। बतौर कोच मोहम्मद असलम व असिस्टेंट कोच अब्दुल मालिक उनके खिलाड़ियों की तरबियती मशक करवाएंगे। बचपन में हमने तो हॉकी का अरूज देखा है और हमसे पूछेंगे जब हम उसका जवाब देखते हैं तो हम पे क्या गुजरती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इसको हॉकी को गेम है यूथ के लिए या आप HEC के जरिए से इसको इसमें कोलैबोरेशन से आप गा रहे हैं, बहुत अच्छा स्टेप है। और मेरे एक भाई ने यहाँ सवाल किया था कि गवर्नमेंट के आने जाने से, और अनफॉर्चुनेटली मैं कहती हूँ कि हमें ऐसा एक बात बनाना चाहिए कि खेल पे और तालीम पे किसी भी सियासत का असर नहीं होना चाहिए। इनको गेम को और तालीम को सियासत से बात होना चाहिए और हमारी यूथ को इसके लिए जितना फैसिलिटेट हो सके हर गवर्नमेंट का फर्ज है और हर गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो इसको फैसिलिटेट करें और मज़ीद आगे लेके जाएं। हमने खुद अपने ज़माने में बहुत गेम्स खेले हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि हमारे बच्चे आगे प्राइवेटाइजेशन हो गई है और सिर्फ बिजनेस देखते हैं, अब जो एजुकेशन है वो भी बिजनेस बन गया है। हमारे वक्त में एक जरूर टाइम होता था, एक पीरियड होता था, गेम पीरियड होता था और सारी गेम्स खिलाते थे और पार्टिसिपेशन करने वाले को स्पेशल नंबर दिए जाते थे, जिसकी वजह से मैं भी अपनी बॉडी पार्ट टीम की कैप्टन रही हूँ और बाकी भी चीज़ें हम खेलते रहे हैं। लेकिन ये कि अगर हमारे बच्चे वो चीज़ नहीं इंजॉय कर सके, ना देखे, छोटे छोटे स्कूल, प्राइवेट स्कूल जिसमें इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी गई बच्चे से, और मैं होप करूँगी, मैं विश्व गुड और सारी बच्चियाँ खास तौर पर जो यहाँ तो मेरे लिए वो प्राउड मूवमेंट था कि मेरे साथ इंटरनेशनल हॉकी टीम की कैप्टन के साथ बैठी हुई थी फाइव साइड पे, तो बहुत अच्छी प्राउड मूवमेंट थी मेरे लिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसको आगे लेके चलें और बच्चियों को भी उतना ही पार्टिसिपेट करना चाहिए जितने बच्चे हैं, और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जो गेम है, खेल है और जो एजुकेशन है वो सियासत से मुकर्रर है। हबीबाबाद से मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस लोकल पुलिस के तावन से मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम। मॉक एक्सरसाइज का मकसद अफसरान की पेशा वराना सलाहतों में इजाफा करना है। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने बेट नंबर 14 पर और रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस लोकल पुलिस के तावन से मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया। DIG नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस मोहम्मद नदीम के अहकामात के मुताबिक सेक्टर कमांडर शहबाज आलम की हिदायत की रोशनी में बेट कमांडर सायरा तारी की निगरानी में रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस लोकल पुलिस के तावन से ट्रेनिंग कोर्स का एहतमाम किया, जिसमें रेस्क्यू 1112 की जानिब से नेशनल हाईवे एंड मोटरवे स्टाफ को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर DSP मोटरवे सायरा तारिक, एडमिन ऑफिसर परवेज इकबाल समेत मोटरवे अफसरान ने शिरकत की। गोशरा में सीनियर सहाफ़ी राना अब्दुल्ला शफी के वालिद राना मोहम्मद शफी मरहूम के असाले सवाब के लिए चहलम के खत्म शरीफ के महफिल पाक पेंसरा रोड पर निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें पुलिस अफसरान, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान, जिले इंसामिया, सियासी समाजी उलमा कराम, डॉक्टर्स, वकला, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चहलम के खत्म शरीफ के महफिल पाक पेंसरा रोड पर वाक़या निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें पीर सैयद सईद अफजल शाह ने वालिदैन के शरई हकूक पर बयान करते हुए कुरान और हदीस की रोशनी अहमियत को उजागर किया। महफिल में अजीज़ो और काब समेत पुलिस अफसरान, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान, जिले इंसामिया, सहाफ़ियों, सियासी समाजी मजहबी शख्सियात, वकला समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असली गल मोहम्मद पर क्या कोई अंदरों गई है
असली गल मोहम्मद की बात तो मैं दीदी कर लेकिन से मन का फालतू लागे जे इमामे मेहदी तक तू ना ही गिन लैन इन्हां नावां दी बरकत है सुभान अल्लाह अली पाक तू मैं दीदी कर जे गिन से मन जाते ये हुई दीन दे वारस छलिया ये हुई दीन दे वारस छलिया ये हुई इमामत वाले ने इज्जत देवण वालाया के ये हुई इज्जत वाले ने। मरी THQ अस्पताल मुसाहिल की आमाशगाह बन गया। ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद नहीं, दूर दराज से आए मरीज मुश्किलात से दो चार। MS हस्बे रवायत अस्पताल में मौजूद नहीं। 18 अगस्त को भी 26 नंबर कमरे में मौजूद डॉक्टर अब्दुल जब्बार अवान ने मरीजों के साथ गालम गलोच की, जबकि नुमाइंदा ऑन न्यूज का मौकफ जानने के लिए अस्पताल पहुंचा डॉक्टर उठकर कमरे से चला गया। मजीद तफसीलात जानते हैं। मरी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मजहर महमूद अब्बासी। जी मजहर महमूद, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ THQ हॉस्पिटल में OPD के बाहर। यहाँ से आपको अंदर के मनाज़र भी दिखाएंगे। हस्बे मामूल यहाँ पे आज भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। MS जो हैं वो हस्बे मामूल आज भी अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है। कल भी हम आए हैं, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दर्जा चारम, दर्जा सोम, दर्जा पंजम के जो मुलाजम हैं वो ड्यूटी पे होते हैं, जो मेन डॉक्टर हैं वो ड्यूटी पे नहीं होते। जहाँ पे जो साइलिन आए हुए हैं उनको शदीद मुश्किलात का वो यहाँ पे शिकार हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपको अंदर लेके ज़रा चलते हैं 26 नंबर तक, आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये स्पेशलिस्ट यहाँ पे होते हैं, ये हस्बे मामूल यहाँ पे नहीं है, आज ये भी छुट्टी पे हैं। इसके अलावा आपको आगे दिखाएं, जो साइलिन हैं वो शदीद मुश्किलात का यहाँ पे शिकार हैं। दूर दराज से आए हुए जो लोग हैं वो यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से वापस। मोहम्मद यासीन मलिक, तहसील रिपोर्टर उबाड़ू से। तालुका अस्पताल डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी गरीबों के लिए मौत घर और रेफरेंस सेंटर बनकर रह गया। डॉक्टर्स और अमले के बेहिस्सी की वजह से कई गरीब और मजबूर लोग मौत के मुंह में जाने लगे। इमरजेंसी में लाए जाने वाले मरीज को डॉक्टर की गैर मौजूदगी में नर्सिंग स्टाफ ने रहीम यार खान रेफर किया। एम्बुलेंस और ऑक्सीजन का बंदोबस्त भी कर लें। बुरसा के एम्बुलेंस और गैस की फ्राहमी की अपील पर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में सयाओ सफेद के मालिक नर्सिंग स्टाफ ने एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की फ्राहमी से यकसर इनकार कर दिया। बुरसा के बार बार ड्यूटी पर गैर हाजिर डॉक्टर से राब्ता करने पर भी डॉक्टर ने राब्ता ना किया। मौजूदा इंचार्ज और ड्राइवर ने बुरसा को धमकी देते हुए कहा कि आपसे जो बनता है वो कर लें, मगर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बुरसा ने हुकाम वाला से नोटिस लेकर मदद की अपील की और नाअहल करप्ट अमले के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की। और इधर समुंदरी में रजाना रोड शहबाज शरीफ पार्क के करीब महकमा हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से सड़क का सर्वे जारी। सड़क की खस्ताहाली को देखते हुए सर्वे कर रहे हैं। महकमा हाईवे जल्द ही सड़क को मुरम्मत करके ठीक कर दिया जाएगा। सड़क का सैंपल लेकर लेबोरेटरी भिजवा दिया गया। पता लगाया जाएगा कि सड़क इतनी जल्दी खस्ताहाली का शिकार क्यों हुई। खैरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार 48 घंटों की बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ज्यादा बारिशें 1992 में हुई थी, जिसके बाद 2022 में बारिशें जुलाई और अगस्त के महीने में हुई, लेकिन अभी तक बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही। खैरपुर से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मोहम्मद अदनान, मजीद जानते हैं उनसे। जी मोहम्मद अदनान, मजीद आगाह कीजिएगा। घंटे से जो लगातार बारिश ने इलाके में तबाही मचा दी है, या निचले दर्जे का जो है वो सैलाब आ चुका है। ये खैरपुर का इलाका है, कोट लालू, जहाँ ये निचले दर्जे का जो सैलाब है वो आया है। और उसके अलावा बात की जाए गांव मिर्दा जप्पा की, तो उसमें शदीद जो आवाम को वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जो यहाँ 3 फुट से लेकर 2.5 फीट और यहाँ से तकरीबन 3.5 फीट तक भी पानी जो है वो जमा हो गया है। उचले जो ऊपरे इलाके हैं वहाँ से पानी निकल के ये निचले इलाकों में पानी वो दाखिल होना शुरू हो गया। यहाँ इंतज़ामिया और कोई भी यहाँ आला अमलदार मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ आवाम को भूख और जो हबस है उससे शदीद परेशान है। और अभी जो है वो बारिश शुरू है, तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं, तो ये बारिश जो है अभी तक शुरू है। यहाँ निचले दर्जे का आपको बता रहा हूँ सैलाब आया है और यहाँ जो गांव वाले वो नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। यहाँ जो है वो घर भी गिर चुके हैं और इसके अलावा जो है
वो घरों की बड़ी पैमाने पर तबाही हुई है। तबाही की वजह से यहाँ के जो गांव वाले हैं वो नकल मकानी पर मजबूर। मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद हसन रांझा ने मरी में अपना चार्ज संभाल लिया। मरी आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर एसी मरी वकास अफ्तर, सेकेंडरी TMA के अहदेदारान, दीगर स्टाफ भी शामिल था। अहमद हसन रांझा ने अपने तासुरात में कहा कि मरी से मुकम्मल वाकफियत है, इंशाअल्लाह मिलकर काम करेंगे और मसाइल को हल करेंगे। चिन्नौर से सईद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन फटी ना आसमान। एक बार नहीं बल्कि बार बार एक मजबूर माँ को उसके कम उम्र बच्चियों और 10 साला बेटे की इज्जत की खातिर होना पड़ा बार बार रुस्वा। चिन्नौर के इलाका मोहल्ला तौहीदाबाद का रिहायशी नदीम नामी शख्स एक मजबूर माँ को बेबस माँ अपने बच्चों की इज्जत बचाने की खातिर बार बार मिन्नत समाजत करने पर हुई मजबूर। मोहल्ला तौहीदाबाद की रिहायशी नसीम बीबी और इलाके के काउंसलर गुलाम अब्बास साकी का क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी मेरा नाम नसीम है, मैं मल्ला तौहीदाबाद च रह्नी हाँ। तो इस मकान मैंने साल 1.5 साल हो गया रहांदे। तो आ मेरे बच्चे हैं, 3 मेरियां बच्चियां ने, एक मेरा बेटा है। तो मदरसे जाते हैं पढ़न वास्ते। तो मैं छड्डना लियाना भी, वो इत्थे एक है बदमाश है छोर, नदीम शेख उहदा नां है। तो उस कितनी दफ़ा मेरे बच्चों ने पहले हिरासा किया, उस डराया धमकाया, उन्होंने फद के मूँह चुम लैंदा। तो पहले 2-3 दफ़ा जाके समझाया उसनों, वो कोई नहीं समझा। तो मोड़ सा जाके उन्हें समझाया, चौथी दफ़ा समझाया उसनों, उस मेरे पुत्तर ने भी धमकियां दित्तियां, मेरे पुत्तर ने भी फाद के तो मारदा रहा। तो मेरिया धियां भी उस आख्या तेरिया धियां चाह लैना। तो मुड़ सा समझाया मीवियां भी जाके, तो वह निकलिया। तो उस आख्या भी मैं जेलां थाने वेखे होया, जेड़ा तुहाडे कोल नहीं हुंदा तुसीं ओह कर लो। तो मुड़ सा चौकी तो फोन किया, 15 नूं कॉल की है, पुलिस आ गई है। तो उन्हें उस तो पूछया, तो महल्ले भी बकायदा उनकी गवाही दी है कि यह लड़का इंज दा ही है, अगे पहले भी बच्चे ने हिरासा करता है। पूरे महल्ले 15 नूं गवाही दी है, वो चौकी ते लै गए नो। तो उत्थे उन्हें रात रखा है, उत्थे उस अपना सारा जुर्म कबूल किया कि मैं गलती की है, मैनू माफ़ी देवो। राती मैंने उत्थे उन्हें आख्या कि बीबी इसते परचा तुसीं कराओ, तो असीं तुहाडे नाल उस बच्चे ने हिरासा किया, उस गलत किया। तो सुबह उन्हें मैनू बुलवा के चौकी वाले उसनूं छड्ड दिता है। उन्हें मेरे को कोई पूछा नहीं, कोई दस्या नहीं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम अब्बास साकी, साबक जनरल काउंसलर अहमदपुरा सलारा रोड चनियोट। जी नसीम बीबी औरत दे घर असीं खड़े हैं, तो मैं वाज़िया तौर पर बतौर नुमाइंदा इलाका दसना चाहना कि इत्थों का एक नदीम शेख उबाश नौजवान है। यह छोटे छोटे बच्चे ने, ये दरस जाते हैं, स्कूल तो वापसी तो बाद ओक लगा के चौक दे विच खाली पलाटां दे कोल बैठा हुंदा है। तो अरसा दराज तो यह वारदात कर रहा है और वह हबस बनाना चाहता है, अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है ना बच्चों। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए ऑन न्यूज़।